چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی نے کوئی اور فقی مسئلہ بیان کر دیا، کسی نے کوئی اور بیان کر دیا. میں ابھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتا ہوں، ان کے فقہ کو فالو کرتا ہوں، تو میرے نزدیک اور ساری چیزیں ہیں. اگر کوئی امام شافعی رحمہ اللہ یا امام مالک رحمہ اللہ یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں تو ان کا وہ الگ سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو یہ بیسک عقائد جو ہمارے ہیں، میں نے اس لیے وہاں پہ مینشن کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی مسلک ہیں سب کو ایک ایک بندہ لے لے، کوئی بھی چن کے رینڈم، اس سے پوچھے تمہارا اللہ کون ہے، وہ کہے گا میرا اللہ وہ ہے جو خالق کائنات ہے. تمہارا رسول کون ہے، وہ کہے گا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کہے گا بالکل نہیں آئے گا. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جی ضرور لائیں گے. قیامت آنی ہے، جی بالکل آنی ہے. قیامت کے بعد جینا ہے، جی بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھانا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے. جنت دوزخ ہیں، جی بالکل ہیں. یہ بیسک عقائد ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور غیر متزلزل ہے، اور قیامت تک غیر متزلزل رہے گی، جی بالکل رہے گی. یہ بیسک عقائد ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد بیسک عقائد ہے. ہماری جو آپس میں تفرقہ پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اذان جب بھی شروع ہو اس سے پہلے سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کھانا پینا بند کر کے روزے کی نیت کر لینی ہے. لیکن ایک کہتا ہے نہیں جی جب تک اذان ہو رہی ہے آپ لوگ کھاتے رہو. تو یہ امپلیمنٹیشنز کے اوپر ہمارے اختلافات ہیں سسٹر. ہم مسلک ہیں، ہم فرقے نہیں ہیں. جب ہم فرقہ بنیں گے پھر ہم لوگ اس کا بھی جواب دے دیں گے. جب کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلک نہیں فرقہ بنایا، اس نے خود لکھا، میں انگریزوں کو خط لکھ کے کہا کہ میں نے ایک نیا فرقہ ترتیب دیا ہے کیونکہ عقائد میں تبدیلی آ گئی. ایک یہ امام مہدی بن گیا، مسیح موعود بن گیا، جہاد کو حرام قرار دے دیا، زکوٰۃ کی جگہ پہ چندہ لے آیا، روزے خود بھی نہیں رکھتا تھا، دوسروں کو بھی توڑوا دیتا تھا. نمازیں 6 مہینے مسجد میں اور 6 مہینے گھر میں، یہ 2 نمازیں جمع کر کے پڑھاتا رہا، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. چلو یہ تو امپلیمنٹیشن پہ آ گیا. جو بیسک عقائد ہے زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، 4 میں اس نے تبدیلی کر دی، نبوت میں اس نے تبدیلی کر دی. تو اس کا تو بیسک عقائد کے اندر اس نے اختلاف کر دیا اور اسی وجہ سے اس نے انگریزوں کو لکھا. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹے، اس کذاب کے ہاتھوں سے سب کچھ لکھوا دیا تاکہ باقی لوگوں کے لیے سند رہے کہ یہ جھوٹا اور کذاب تھا. خود لکھ دیا انگریزوں کو کہ میں نے ایک نیا فرقہ بنایا، اسلام کا ایک نیا فرقہ بنایا، میں اس کا پیر ہوں اور باقی میرے مرید ہیں. اس کو کہتے ہیں فرقہ. پرویزی فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، بیسک عقیدے کے اندر فرق ڈال دیا انہوں نے، حدیث کا انکار کیا. جی معجزات کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا. بیسک عقائد ہے فرقہ. لاہوری گروپ. عابد بھائی ایک منٹ علی بھائی، ایک منٹ علی بھائی. لاہوری گروپ کو یہ فرقہ کیوں کہتے ہیں اپنا الگ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے بیسک عقائد ان کے مرزا نبی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجدد ہے. بیسک عقائد میں فرق آ گیا، اس لیے ان کو یہ الگ مانتے ہیں، جبکہ ہم ایک دوسرے کو الگ نہیں مانتے. ہمارے فروعی مسائل ہیں سسٹر، ہم فرقے نہیں ہیں. پہلی بات. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ فرقے بنیں گے، آپ اس حدیث کو جھٹلا رہے ہو.
جی نہیں، ہم لوگ اس عزیز کو نہیں ٹٹلا رہے. دیکھیں فرقے بن رہے ہیں، پرویزی فرقہ بنا، یہ قادیانی بنا، ابھی جمبا بن گیا ہے، لاہوری گروپ بن گیا ہے، زائد گروپ بن گیا بہائی ہے، بہائی آئے پھر ہیں، جی ملحد آئے ہیں، بہائی فرقہ بن گیا، بہائی فرقہ ظاہری بن گیا، ظاہری ملحد ہوئے، فرقے بن گئے. خارجی ہوئے، جی 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 اور جی جی انبیاء تو جنہوں یہ نے فرقے نبوت کے بن دعوے رہے ہیں. کیے ہم جی جی ہم تو ہم اسلام میں. فرقے بن رہے ہیں، ہم تو ان کو مان رہے ہیں، ہم تو ان کو مان رہے ہیں. ہم تو اس حدیث کا انکار نہیں کرتے، اور کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ اگر حدیث کا عابد بھائی انکار ایک کر دیا منٹ، تو السلام ہم بھی علیکم. کفر میں پڑ یہ جائیں گے. وعلیکم ساحل السلام. بھائی موجود ہیں؟ وہ مفتی صاحب نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے، وہ بیک کیے ہوئے، میں ان کو اٹھا نہیں پا رہا. ساحل بھائی، اچھا یار اور عابد بھائی، جی ساحل بھائی آپ موجود ہیں؟ میں ایک منٹ کال کرتا ہوں ساحل بھائی کو، آپ جاری رکھیں. علی بھائی صرف ایک اچھا جملہ عابد بھائی بولوں گا آپ کہ کے عابد بھائی نے یار ایک آپ کی بہت بہت زیادہ ایسا، لمبی ہوتی ہے بات. نہیں صرف ایک جملہ بولوں گا. کریں بات کر. آپ عابد بھائی نے جو ایک ڈفرینسیشن کر دیا نا سسٹر، وہ یہی کر دیا کہ عقیدہ ایک نہیں ہے، نیا عقیدہ بنا لیا اور اسلام کے عقائد کے بنیادی اصولوں کے خلاف، تو وہ ہے فرقہ. بس یہ ہے، جان لیں. علی بھائی آپ بات کریں. نہ کوئی بات نہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. شاہ صاحب، آپ شاہ صاحب آ گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، کیا فرقہ فرقہ ہی ہو گیا ہے؟ مطلب میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال رکھنے لگا تھا، جی تو پھر جی وہ آپ کی آمد ہو گئی، تو پھر وہ علی بھائی کا بھی شکریہ، آپ رکھ انہوں دیں نے مفتی میٹر صاحب، بیس آپ رکھ دیں معذرت آپ کی مفتی بات صاحب، کٹ ہوئی. بہتر جواب دے دیں گے. آپ رکھیں سوال، ہم سے بہتر جواب آپ کو ملے گا. آپ رکھیں سوال. ہاں، میں وہی کوشچن تھا عابد بھائی کی باتوں میں سے ہی کہ شاہ صاحب جیسے ابھی بڑی خوبصورت عابد بھائی نے بھی ڈیٹیلز کو بڑا وضاحت سے واضح کیا، کیونکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی نا معاذ بن جبل کے حوالے سے کہ اجتہاد ہونا چاہیے اور کیا ہو تو مسلمان آپس میں بیٹھ کے بات کریں تو فقے بن جاتے ہیں، مکاتب فکر آ جاتے ہیں. اور مرزا غلام قادیانی نے ساری زندگی فرقہ 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 کیوں کھلایا اور پلایا سب کو، کیوں؟ اور جو اب بھی یہ ہم پہ تھوپا جاتا ہے کہ ہم فرقے ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہوتی ہے باتیں کیوں فرقہ بتایا جاتا ہے ہم لوگوں کو. اصل میں یہ جو ہے نا، یہ ان شریر لوگوں کی ایک سمجھ لیں کہ سازش ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری کر کے خود ہی شور مچانا شروع کر دے کہ چور 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 چور. ہاں جی، چوری اور پھر سونا سینہ زوری. تو فرقے ان لوگوں نے خود بنائے اور الزام لگا دیا مسلمانوں کے اوپر کہ تم فرقے بناتے ہو. جیسا کہ ابھی عابد نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے کہ ہم تو، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے کوئی فرقے. بھائی ہمارے نزدیک مکاتب فکر ضرور ہیں. مکتب فکر کہتے ہیں کہ سوچ کا زاویہ الگ ہو گیا ہے. ایک نے کسی اور اعتبار سے سوچا اور اس کی فکر لگ گئے، ایک نے کسی اور اعتبار سے سوچا اور فکر لگ گئے. تو اس اعتبار سے مکتب فکر جو ہے، جس کو انگلش میں شاید اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے نا، یہ ہے فرقے تو نہیں ہے ہمارے نزدیک. وہ جو 73 فرقوں والی ہے نا، وہ اصل میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو وہ امتی جو ہے نا، امتی کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے اور علماء کرام نے اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر میں ذاتی طور پہ کئی دفعہ لیکچر دے چکا ہوں اور دلائل میں نے پیش کی ہیں. بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے کہ یہ جو 73 فرقے ہیں امت کے، وہ کون سے ہیں. تو اس سے مراد امت کی اصل میں 2 قسمیں ہمارے علماء کرام نے بتائی ہیں. ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. امت دعوت اس امت کو کہتے ہیں کہ جن کو قیامت تک دعوت دی جاتی رہے گی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ. یہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، قادیانی، مرزا جونیئر جیلمی، یہ چکڑالوی، یہ جو بھی ہے جو غیر مسلم ہیں، یہ سارے امتیں
دعوت کے اندر شامل ہیں کہ جن کو دعوت دی جاتی رہے گی کہ اپنے کفر سے شرک سے توبہ کر کے اسلام کے دائرہ کار میں آ جاؤ۔ ایک امت اجابت ہے کہ جو کفر اور شرک سے توبہ کر لیتے ہیں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں امت اجابت، یعنی قبول کر لیا ہے انہوں نے۔ تو ان امت اجابت کے آگے پھر مکاتب فکر بن گئے، جن میں بریلوی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، وہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جو بھی ہیں، یہ سارے مکاتب فکر یا مذاہب بن گئے ہیں۔ ان کو فرقہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ فرقے جو ہے نا یہ ہیں، ہندو ایک فرقہ ہے، سکھ ایک فرقہ ہے، قادیانیت ایک فرقہ ہے، کیونکہ ہیں تو یہ سارے میرے آقا کی امت ہی ہیں۔ یہ سب ملحدین ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرقے ہیں۔ مرزا جونیئر جیل میں ایک فرقہ ہے، تو یہ سارے فرقے ہیں۔ اور یہ تھے وہ فرقے کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اور وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا یہ ایک فرقے ہیں اصل میں، جن کے پھر مختلف مکاتب فکر بنتے ہیں۔ وہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ان مکاتب فکر کے اندر جو غلطی کرے گا تو وہ وقتی طور پہ سزا بھگت کے تو بعد میں جنت میں چلا جائے گا، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن خالدون جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہ اس امت کے 72 افراد ہیں جو ہمیشہ کے لیے ان کی وہ کوئی نہیں ہے کہ وہ سزا بھگت کے واپس جنت میں آ جائیں گے، نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے ہمیشگی ہے، انہوں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا۔ ہاں، ان مکاتب فکر کے اندر اگر کوئی کرے گا کوئی گناہ، کوئی غلطی کرے گا تو وہ اپنی سزا بھگت کے، وہ بھی اگر اللہ چاہے گا، اگر چاہے تو بغیر حساب کے ان کو جنت میں بھیج دے، وہ تو اللہ کے اوپر ہے نا۔ تو یہ اب فرقے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں ایک دوسرے زاویے سے۔ فرقہ جو ہے نا یہ کہ سوال کرتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی فرقہ نہیں بنایا، بالکل فرقہ بنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور حدیث اگر کوئی چاہے گا تو میں انشاءاللہ اس کو حدیث کا ریفرنس بھی دے دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ریفرنس بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ حدیث میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے 2 فرقے بنائے، یہ آ گئی یہ حدیث۔ یہ حدیث ویسے تو ابھی میرے سامنے یار ایک منٹ، چلیں بہرحال حدیث سن لیں۔ یہ حدیث کوئی الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں، لیکن ابھی میں نے آج شاملہ کھولا تو ہے، بہت زیادہ حوالہ جات آ گئے ہیں، تو ایک دم جو ہے نا وہ بیان کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، وہ اس طریقے سے ہے کچھ کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور آگے جا کے فرمایا کہ ان اللہ خلقہ کہ جب اللہ پاک نے خلقت کو بنایا تو فجعلنی فی خیری خلق ہی، تو اللہ پاک نے مجھے بہتر مخلوق کے اندر پیدا کیا، ثم فرقہم، پھر ان کے اندر فرق ڈال دیا اور ان کے گروہ بنا دیے،
फिरकातैन यानी 2 फिरकों के अंदर उनको अल्लाह पाक ने बनाया। फजाअलानी फी खैरिल फिरकातैनी, तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे उन 2 फिरकों में से बेहतर फिरके के अंदर रखा। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है ना वो अपने आप को फ़िरके के अंदर कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे एक बेहतर फ़िरके के अंदर रखा है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, कई लोग करते हैं कि क्या सहाबा ने भी फ़िरके बनाए थे? जी बिल्कुल बनाए थे। उसका भी जवाब हम हदीस से ही देते हैं। यहाँ पे हदीस नंबर है 4050 है बुखारी शरीफ की। वकाना असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरकातैन, तो असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो 2 फिरके हो गए। ठीक है, नबी के असहाब 2 फिरकों के अंदर बट गए जी। लो जी 2 फिरके बना डाले साहबा ने। फिरकातन तकूलु, एक फिरका ये कहता था कि नुकातिलुहुम, कि हम उनका कत्ल करेंगे। व फिरकातन तकूलु ला नुकातिलुहुम, कि हम उनका फिरका कत्ल नहीं करेंगे। तो इस किस्म की अहादीस आपको और भी मिल जाएंगी। तो यहाँ से 2 हदीसें मैं समझता हूँ काफ़ी हैं फ़िरके के ऊपर। एक तो हमने साबित किया हदीस से कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरका बनाया, और एक सहाबा ने फ़िरका बनाया। 2 दलीलें दे दी हैं। तो ये फ़िरका जो बना है ये वो ही फ़िरका है, 73वां फ़िरका भाई। हाँ, 73वां फ़िरका जो कि जन्नत में जिसने जाना है, उसके ये सारे अफराद हैं। तो यहाँ पर ये भी ज़हन में रखिएगा, फ़िरके का मतलब होता है ग्रोह। ठीक है, तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके ऊपर बड़ा वावेला किया जाए, लो जी फ़िरके फ़िरके फ़िरके। भाई ठीक है, ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, वो चला हुआ है। जिसको अल्लाह चाहेगा वो जन्नत में डालेगा, जिसको चाहेगा वो जन्नत में डालेगा। तो इतना वावेला करने की क्या मतलब, उसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है। बस सिराते मुस्तकीम पे रहो, अच्छे अकायद और अमाल के ऊपर रहो, बस। अल्लाह खैर सल्ला बकाया छोड़ो। कोई फ़िरका बनता है बनाता है, नहीं बनता नहीं बनाता छोड़ो, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। जी मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली। इजाज़त है साल भाई, एक बात मैं रख दूं। और शाह साहब एक और बात है कि कादियानी जमात के मानने वालों को उनके खलीफा ने, मुरब्बियान ने ये बताया कि जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो जन्नत में जाएगी। तो हमें ये कहते हैं फ़िरका, मतलब हमें अपनी जमात कादियान के मानने वालों को ये झूठ खिलाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। और अगर देखें हमारे जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मसालक हैं, वो ख़ुद को जमात ही कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है बीच में, बड़ा बारीक सा है। नाइटेटर भाई नोट करने वाला है ये भी, कि हम भी हमारे अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है, ये हम भी जमात ही कहते हैं। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दजल क्या किया है, वो हमको फ़िरका बता रहा है। और ये शरारत तभी होती फ़िरका वाली इस्लाम में जब इस्लाम मुखालिफ ताकतों ने इस मुसलमानों में फूट डालनी होती। आप देखेंगे, नोट कर लें, हर 50-100 साल के बाद एक ऐसा शख्स खड़ा किया जाएगा जो फ़िरका खेलेगा। ये बात छोटी जी, जज़ाकल्लाह खैर। असल में बात ये है, सॉरी, बस वो आपने जो हदीस का जिक्र फरमाया ना, जब भी मिल जाए ना, बहुत जबरदस्त पॉइंट है आपने। जी मैं नहीं वो एक मिनट, चलो मैं पहले तलाश नहीं कर रहा था। जी मैं देखे, मैं अभी बस बहुत जबरदस्त। असल में मेरी ना क्या नाम है आपका यार, आपका नाम क्या है नाइट राइडर? मेरा नाम महमूद है। अच्छा महमूद भाई, अच्छा चलें ठीक, तो अल्लाह करे मुझे याद रह जाए। अच्छा ये है महमूद भाई कि मेरा ना ये सारा डाटा मैं मतलब फोल्डर वगैरह बना के हर चीज़ की तरतीब लगा के अपनी जिस हार्ड डिस्क में ये चीज़ें रखी थी ना, ओहो बस वो ज़ाया हो गया है मुझसे सारा डाटा, और मेरी हार्ड डिस्क ख़राब असल में हो गई है। तो नहीं तो ये चीज़ें तो वो सब तलाश करके फोल्डर बना के हाईलाइट करके सफ़े बना के हर चीज़ का मवाद ऐसे सिद्ध पदरा करके हमने एक अरसे का रखा हुआ था उसके अंदर। तो अभी ये दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है
तो ये वाले मामलात है। तो मैं इंशाल्लाह आप गुफ्तगू जारी रखें, मैं अभी बस 2 मिनटों में आपको हवाला निकाल के देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। भाईजान, मैं काफ़ी देर से पहले भी मेरी फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं काफ़ी देर से पहले आप लोगों को सब कुछ सुन रहा था म्यूट पे, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त तो, सबकी बढ़ोगी तो। जी जी ज़रूर जनाब। जी जी यार, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूं भाई, मैं कादियानी नहीं हूँ। जरा माजरत के साथ मुझे आप थोड़ा सा जरा मैं इनको महमूद भाई को जरा हवाले दे दूं। हवाले नोट करें जी। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा है, हदीस नंबर 31,639 है। मुस्नद अहमद है 1,788, 17,517 और तिरमिज़ी शरीफ 3,532, 3,608, 3,532, 3,608। इस तरीके से अल सुन्नतु ली इब्ने अबी आसिम किताब का नाम है, उसमें ये हदीस है 1,497। और अल मुजमुल कबीर तबरानी की 675 हदीस और 676। और इसके अलावा बड़े हवाले हैं अल मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम हाकिम की हदीस नंबर 5,077 है, और दीगर किताबों के अंदर भी मिल जाएगी। ये मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी किताबें थी ना, मैंने उनके हवाले दी। तो महमूद भाई इतने हवाले काफ़ी हैं? जी जी, बहुत जज़ाकल्लाह साहब, बिल्कुल काफी है, जबरदस्त जी बेहतरीन हो गया। और वो वाली जो 2 फिरके बन गए थे सहाबा के, उसके तो हवाले राउंड बोर्ड के 100 के करीब हैं, क्योंकि मैं अभी आज शामिला सॉफ्टवेयर खोल के बैठा हूँ। जी। हाँ वो शाह तो साहब, इसमें- इससे भी ज्यादा है। जी शाह साहब, इसमें आपने 2 रेफरेंस बताए थे, 3,608, 3,600। अली साहब, मैंने ये एक कौन सी सवाल किताब है? इनबॉक्स किया है, वो मुफ्ती साहब से जरा पूछ दे मेरे भी हाफ पे, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इसका क्या रेफरेंस था? ये मुस्नद अहमद के बाद आपने बताई है 3,608। जी एक लेटर में अगर आपने नोट जी एक मिनट, मेरा सज्जन कौन सी किताब? ये आपने किताब का नाम ही पूछना है शाह साहब। मैंने असल में वो किताब का मैं लिख नहीं पाया नहीं नाम। पहले इससे पहले वाली किताब बता देना। आपने बताई है मुस्नद अहमद अच्छा एक 1517 मिनट, अच्छा और 1788 मुस्नद अहमद से। हाँ, उसके इसके बाद वाली बाद किताब का नाम है इस तिरमिज़ी जी, है। जी। इसके बाद तिरमिज़ी के 4 वाले नहीं है। ठीक होगा, ठीक है। 3,000 तिरमिज़ी के 4 वाले हैं भाईजान। हाँ जी हाँ, वो मैं शाह साहब वो लिख नहीं पाया जल्दी में। मैं अक्सर जी, ऐसे जी। नीचे लिख देता हूँ, सब भाइयों जी। के लिए रेफरेंस आ जाता है, फिर सुनने वालों के जज़ाकल्लाह लिए भी। जज़ाकल्लाह। मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो वैसे मैंने नोट हाँ, किया। अगर कोई इसमें कमी बेशी हो जाए तो माजरत, क्योंकि वो शाह साहब बोल रहे थे, मैं बस टाइप कोई- कर रहा था हाँ, जल्दी से। ठीक, हदीस का नंबर भी होगा ना, तो वो फिर हम बुक देख लिया करेंगे। जी हाँ वो मैंने अच्छा नीचे लिख दिया। नंबर दोबारा मैं बता देता हूँ तिरमिज़ी का। साहिल साहब, मैंने इनबॉक्स किया आपको क्वेश्चन, वो जरा मुफ्ती साहब से पूछ ले मेरे भी हाफ पे प्लीज। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा यार देखें किसके की है, वो बार बार कह रहे हैं ग्लोबल भाई, कौन सा कोई हो सकता है कोई जरूरी बात हो। देखें यार कौन सा है, क्या की है मैसेज। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, तब तक बता दीजिए आपकी जो साहब किताब का सानू काउंट हो इजाजत गया। है बोलने दी कौन ही। जी 2 बंदे बोल रहे हैं, कोई एक बंदा फैसला करके बोल ले भाई। मैं पहले बोलने लगा था, फिर आपने कहा मैं हवाले दे दूं, तो फिर मैं वेट करने लग गया, तो जी हवाले खत्म हो फरमाएं जी गए। आपकी इजाजत से बोल सकता हूँ सर कुछ? जी मुफ्ती साहब, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। मुफ्ती साहब, मिर्जा कादियानी का हीरा मंडी के हवाले से आने जाने का ये रेफरेंस मुझे डिटेल में चाहिए, याद रफ्तान का मेरे पास है, मजीद चाहिए। अच्छा यार ये चलो पहले यही सवाल का जवाब दे दें हम। हीरा मंडी के और भी हवाले हैं जी, बड़े हवाले ये लें।
हीरा मंडी का हवाला है तारीख अहमदियत जिल्द 10 में और सफ़ा नंबर 295 है, और दूसरा हवाला है तारीख अहमदियत जिल्द अव्वल सफ़ा 454। ये 2 हवाले मैं समझ तो काफ़ी होंगे। जी भाई, ये बोलूँ मैं? हाँ जी, बोल लें जी, बोल। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले जी क्या कुछ कह रहे कुछ? जी, मेरा तारुफ कुछ साहब को पूछे। तारुफ ये कि भाई मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कादियानी नहीं हूँ। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, वो इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी, यानी कि तजस्सुस उर्दू में कहते हैं उसको। मुझे तजस्सुस है और मेरा क्वेश्चन भी है, मुफ्ती साहब हैं, बाकी सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कोई दीन की तालीम हासिल करने वाले उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं। यार ये जो मुद्दा लेके हम लेके घूम रहे हैं, मतलब डिबेट, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे पहले क्या हमारी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छा इंसान बनने की, हमें वो नहीं पूरी करनी चाहिए? अब ये जो वहाँ देखिए, बेसिकली हम सब पाकिस्तानी है, वो कादियानी भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, ठीक है। अब कहने का मतलब वो अपना खातमुल नबी का मुद्दा लेके आए होते हैं, उसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है, हम उसको काउंटर कर रहे होते हैं। अब दुनिया में 58 या 56 मुसलमान बनते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इशू को लेके सारे मामला ये गड़बड़ थी पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों है, और किसी मुसलमान मुल्क के साथ कोई इशू क्यों नहीं है? वो ना इस पे बोलते हैं, ना हक में ना खिलाफ। तो बेशक हम नबी पाक को आखिरी नबी मानते, खातमुल नबी मानते, और मेरा मान है कि उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन कहने की बात है, जो बोलते हैं उनको बोलने दें, वो तो पागल है, चल रहे, उनको तो पैसे मिलते हैं, उन्होंने तो असाइलम की फीस फाइलें लगाई हुई हैं यूरोप में, तो उनको अपनी वफादारी से ज़्यादा साबित करनी होती है जमात के साथ, तो वो वेले आके बैठ जाते हैं इधर, अपनी रिकॉर्डिंगें कर करके जमात को देते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट को देते हैं यूरोप कंट्री में, फिर उनकी फाइलें हो जाती हैं। तो हम अपने भी मत्था मारी जा रहे हैं उनके साथ, हमें तो हकीकत का पता भी है। अच्छा, मैं बोलूं? जी जनाब। अच्छा, बात ये है कि पहली बात तो ये कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ये इशू क्यों है, दीगर दुनिया में क्यों नहीं? असल में मेरे भाई बात ये है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली है। अली भाई, बात ये है कि आप चूँकि उर्दू स्पीकिंग हैं तो आप उर्दू ही सर्च करते हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट के अंदर भी पाकिस्तानी शामिल हैं, वो भले आप टिकटॉक पे हों, यूट्यूब पे हों, फेसबुक पे हों, कहीं पर भी हों, तो सोशल मीडिया का जो तबका होता है ना, आपकी सर्च में जो आता है वो पाकिस्तानी ही आएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। जी अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये पूरी वर्ल्ड के अंदर है, ऐसा नहीं है, ये हर जगह ही है। आप अफ्रीका में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप बला 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 जहाँ पर भी चले जाएं, हर मुल्क के अंदर ऐसा ही है। वो डिबेट्स हो रही हैं, 24 घंटे हो रही हैं, अपनी अपनी जुबानों के अंदर, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये हो रहा है। वहां के जो उलमा है, जब कोई इस तरह की तौहीन करता है या कोई मामला करता है, तो वहां के उलमा फिर एक्शन लेते हैं और अपनी अपनी जुबानों के अंदर असल में देखें ना, ये सोशल मीडिया है, आज़ाद है, फ्रीडम स्पीच है, आप खुल के बात कर सकते हैं, और वैसे भी वेली दुनिया है, कोई और काम का होता नहीं है, तो वो मोबाइल ओपन करके बैठ जाते हैं, चलो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट ही सही। ये बात आपने ठीक कही। हाँ, ये तो सोशल मीडिया है ही इंटरटेनमेंट, और कुछ भी नहीं है। वेले लोगों का काम है जो बिल्कुल फारग, या वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो मोबाइल साइड पे लगा के, तो वो हाँ चस्के लेने के लिए आ जाते हैं कि चल यार जाके निन्नो लेते हैं कि क्या बन क्या रहा है। तो वेली दुनिया का ये काम है, और कोई नहीं है ये।
तो बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ बात ही हो रही है, मुकालमात हो रहे हैं, डिबेट्स इसका नाम रख लें, इसमें आप जो भी कह सकते हैं। अब हर बंदा अपना फिर इल्म यहाँ शेयर कर रहा है, किसी के पास कम इल्म है, किसी के पास थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ जी, तो ज़्यादातर तबका दुनियादार लोगों का है, तो उनकी सेल्फ स्टडी होती है जो यहाँ पे आके शेयर करते हैं। तो उलमा हज़रात तो बहुत ही कम, इक्का दुक्का आपको नज़र आएगा, है ना। तो ये मामला है। तो यहाँ पे कोई ऐसा, मैं समझता हूँ ये वैसे अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़, क्योंकि यार कत्ल कुतल करने से तो बेहतर है कि डिबेट कर ले, आपस में गुफ्तगू कर ले। बिल्कुल अच्छी चीज है, बिल्कुल मुफ्ती हाँ साहब हाँ, आपने गुफ्तगू कर ले, कत्ल कुतल ना करो, गुफ्तगू करो। तो डिबेट का दरवाजा खुलना चाहिए, मुकालमात का दरवाजा खुलना चाहिए। जी, मैंने अब बात कंप्लीट कर ली। अब बात मुफ्ती साहब बस मैं आपसे इजाजत चाहूंगा आखिरी एक वो जुमला या एक क्वेश्चन पूछ के। अब ये जो पाकिस्तान में फेज नाफिज इस्लाम का कि किसी को भी मसलन गुस्ताख कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। देखिए पुलिस वाले ने बंदे को मार दिया कल जेल के अंदर, और लोग और बच्चे स्कूल के नारे लगा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ज़्यादा जरूरियत नहीं है। ये रियासत का काम है, रियासत डिसाइड करे। हाँ, उस पर प्रोसिक्यूशन हो, उसको इंसाफ का प्रॉपर मौका दिया जाए। जैसे अब तारिक मसूद के खिलाफ फतवे शुरू हो गए, उन्होंने बिला यानी कि मशरूत माफ़ी भी मांग ली है, उन्होंने सब कुछ कह भी दिया है, स्लिप ऑफ टंग होगा, ये गलती से हो गया होगा, लेकिन हम उसको टांगने पे, हमारा एक उसको टांगने पर है कि नहीं जी टांगो। अब किसी को भी गुस्ताख कह के लटका दो, क्या अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कल को मुझ पे खड़ा हो कि कोई इल्ज़ाम लगा दे कि भाई इससे गुस्ताखी की। क्या मुझे इंसाफ के तकाजे ये हैं कि मुझे जस्टिफाई, मुझे अपने मौक़िफ़ रखने का मौका ना मिले? क्या मुझे कोई इंसाफ करे, कोई सुने, मेरा मौक़िफ़ भी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हर कोई जन्नत के शॉर्टकट टिकट लेने के लिए तैयार है कि भाई इसको मार दो, लटका दो, जला दो। कानून नाफिज करने वाले इदारे मार के सर अपने सर ले रह रहे। क्या ये सिस्टम है? नबी का तो ये इंसाफ नहीं है ना, हमारे मजहब में ऐसा है। चाहे इस पे बस रोशनी डाल दें। बस मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं अब इजाज़त चाहूँगा। जी, मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि अक्सर ये जो कत्ल कर दिए जाते हैं ना, ये एजेंसीज के लोग होते हैं जो कि इस्लाम मुखालफ और पाकिस्तान मुखालफ एजेंसीज हैं, जो कि यहाँ पे इंतशार का माहौल बनाना चाहते हैं। तो ये लोग असल में करते हैं, तो फ्रंट के ऊपर किसी और को ले आते हैं। असल करता धरता कोई और होता है। तो और यहाँ पे सियासी चूंकि एक जंग का माहौल बना हुआ है, तो एक सियासी तंजीम दूसरी सियासी तंजीम को या तंजीमों को बदनाम करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए इस किस्म के सियासी हथकंडे इख्तियार करते हैं कि जलाओ गिराओ का माहौल बनाया जाता है और उसको डाल दिया जाता है किसी और सियासी तंजीम के ऊपर। तो ये तो है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है। अगली बात मेरे भाई ये है कि कत्ल करना, कत्ल जो तौहीन रिसालत करेगा उसका तो एक फतवा है, वो तो उलमा इकराम ने दिया हुआ है, किताबों के अंदर मौजूद है कि मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, कि उसको कत्ल किया जाएगा। अब कत्ल करेगा कौन, इसका निफाज कौन करेगा? तो इसका फतवा भी उलमा इकराम ने दिया हुआ है कि वो हाकिम वक़्त करेगा। किसी को अपने, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुन तो ले, सुन ले पहले, सुन ले, बाद में आप बात कर लीजिएगा। इसी वजह से मैं, आप जब बात कर रहे थे बीच में नहीं बोल रहा था, चुप करके सुन रहा था। तो गुजारिश ये है कि वो उसका इख्तियार गवर्नमेंट को दिया जाएगा, गवर्नमेंट करे ना करे, ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम, ठीक है। रही बात ये कि फिर भी अभी केस लगा हुआ है, गवर्नमेंट उसको देख रही है, तो फिर भी कोई इस किस्म की हरकत कर देता है, तो भाई उसको, वो पाकिस्तान का कानून उसके ऊपर भी बना हुआ है। हाँ, उसके ऊपर भी कानून हरकत में आता है और उसको फिर कानूनी एक दायरे में लाया जाता है कि ये तूने जो है ना ये अमल किया है, तो ये अब इसकी सजा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भुगतो। बस ठीक है, उसके ऊपर भी कानून हरकत में आता है। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको इसका जवाब दे दिया है। अव्वल तो ये कि ये काम करने वाले जो होते हैं एजेंसियों के लोग होते हैं, और दोम ये कि अगर कोई इस किस्म की हरकत फिर करता है मावराए अदालत, तो उसके लिए भी फिर कानून बना हुआ है। जी भाई, अब आप बात कर सकते।
मुफ्ती साहब मैं इसलिए कह रहे हैं आप, लेकिन मुफ्ती साहब अगर लेट सपोज इल्जाम किसी पे लगता है, आप पे, मेरे पे, अक्सर पे, तो सीधा क्या अपना हक तो दे दे कि एक दफा उसकी बात तो सुन ले कि हाँ, यार ये इसका जवाब मैंने देना था अभी। लेना देना है या कोई जाती रंजिश में इल्जाम लग गया, ऐसा भी होता है ना, जाती रंजिश में भी इल्जाम लग जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि जाती रंजिशें होती हैं एक सियासी तंजीम को दूसरी सियासी तंजीम से, वो जाती मामले ही है ना। तो वो असल में उसको डिग्रेड करने के लिए और उस बंदे को गिराने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि भाई इसके ऊपर या तो कादियानियत का इल्ज़ाम लगाओ, या मतलब तौहीन रिसालत का इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के इसको मरवा दो, या तो इसको अवाम मार देगी, या मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ये तो मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो बहरहाल ये रवश इख्तियार नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे जाते जाते ये भी ज़रूर अर्ज करूँगा कि जिसकी तौहीन रिसालत हो जाए साबित, तो उसकी माफ़ी कोई नहीं है भाई। हाँ, ये कायदा। तारिक, आपने एजेंसियों का नाम लिया, तारिक मसूद साहब के केस में तो एक मजहबी जमात खुलेआम उनको धमकियां दे रही है, तो इसमें एजेंसियों का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो कोई नहीं दे रहा धमकी, कोई धमकी नहीं दे रहा, कोई धमकी। हम भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है मेरे भाई, हम भी सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं, और एक एक वीडियो हमारी नज़र से गुजर रही है, फेसबुक पे हमारी नज़र है, यूट्यूब पे हमारी नज़र है, ट्विटर के ऊपर हमारी नज़र है, टिकटॉक के ऊपर हमारी नज़र है। हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कोई भी किसी को कोई धमकियां नहीं दे रहा। तो असल में जो धमकियां एक दो वीडियो जो बनी हैं, तो वो जो दिखा रहे हैं ना धमकी, मैं कह रहा हूँ एजेंसियों के बंदे, देखिए ना, मतलब ये तरीका नहीं है। जो पुलिस वाले मार रहे हैं, मुमताज कादरी ने मार दिया, पुलिस वाले ने अभी पेशावर में मार दिया, वो भी एजेंसी के। सर कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं सर? तो मैं नो कमेंट। वो एक बंदा आप जो है ना, वो अपनी सजा पा चुका, ज़ेरे ज़मीन जा चुका, हजरत मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो आप उसको शहीद कहेंगे मुफ्ती साहब? जी जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सुने तो सही ना, उसने एक मुसलमान की जान ले ली अपने वादे की खिलाफ वर्जी हलफ। नहीं, मुसलमान की जान तो नहीं ली, वो उसने तो गुस्ताखी की थी, तौहीन की थी। क्या गुस्ताखी की थी सर उसने? बात ये है कि अब ये वो बाप है जो आप ओपन कर रहे हैं, जो बाप बंद हो चुका है मुफ्ती साहब। तो अब नहीं सर, आप कातिल को हजरत कह रहे हैं। यहाँ पे होगा ये, सुन तो लेना जी, होगा ये कि अब यहाँ पे डिबेट एक शुरू हो जाएगी। तो अगर तो आप डिबेट करने के मूड में हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह मूड में हूँ, तो आप बता दें, फिर डिबेट कर लेते हैं बैठ के, दोनों भाई बैठ के। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम। मुफ्ती साहब जाने दे उसको, ये कोई सुन्नी सानी नहीं था, ये मर्ज़िया था, इस तरह की बात। ये वो गुफ्तगू से या तो ये एथीस्ट लग रहे हैं मुझे, तो या मतलब कादियानी लग रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा था ये, क्योंकि ये मुसलमानों वाली गुफ्तगू ही नहीं और लबो लहजा ही नहीं है मुसलमानों वाली। और उसको खुद पता नहीं है कि वो केस है क्या, वो हमसे पूछ रहा कि उन्होंने क्या किया। भाई तुम बताओ उन्होंने जो नहीं किया। नहीं, ये गालब गुमान मेरा यही है कि ये एथीस्ट थे, ये साहिब, ये मुस्लिम नहीं थे जी। जी मैं कुछ अर्ज करूँ मुफ्ती साहब? जी फरमाएं जी फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना आपसे ये पूछना था, वो जो आपकी बुक लॉन्च हो रही है वो कब हो रही है? हाय हाय जी, ख़त्म नबूवत कोर्स के नाम से मैं किताब लिख रहा हूँ, और लिखी है कि उसकी 6 जिल्दें हैं टोटल, और पहली जिल्द जो है ना वो कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस के अंदर चली गई है। 10 दिन का टाइम प्रेस वाले ने दिया है, 10 दिन में इंशाल्लाह उसकी पहली जिल्द आ जाएगी। तो आप तमाम दोस्तों को इंशाल्लाह ताला हम देंगे, और दूसरी जिल्द के ऊपर काम जारी है। बड़ी उम्मीद तो यही है कि जब तक पहली जिल्द छप के आएगी तो दूसरी जिल्द भी हम प्रेस के अंदर दे देंगे। तो इंशाल्लाह इसमें 6 जिल्दें होंगी, और इन 6 जिल्दों के अंदर क्या है कि कादियानियों उठाए गए एक एक इतराज के 10-10 जवाब दिए हम। यानी एतराज एक है, उसके जवाब हमने 10-10 अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजल से दिए।
ٹھیک ہے. تو جتنے بھی حیات مسیح، وفات مسیح اور اجرائے نبوت اور ختم نبوت اور امام مہدی اور جناب مرزا قادیانی کی ذات، کردار اور اس کی غلیظ حرکات، سب کچھ اس کتاب کے اندر آ گیا. یہ فلاں حدیث یہ کہہ رہی ہے، فلاں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے. تو ہر اعتراض کا جواب ہم نے اللہ پاک کے حکم سے 10 سے زیادہ جوابات دیے. ہاں جی. اور اصل کتابوں کے سکین آخر میں ہم نے لگا دیے ہیں کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے. ہاں جی. وہ مفتی صاحب، وہ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھی کیا تھا، وہ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے کورس کے لیے نا، تو وہ آپ دوبارہ کریے. اصل میں میسیجز میرے بھائی بہت آتے ہیں، کچھ اپنوں کے آتے ہیں، کچھ غیروں کے آتے ہیں. تو وہ نہ بس ایسے ہی کبھی توجہ ہوتی ہے، کبھی توجہ نہیں ہوتی. تو اب بندہ کیا پڑھ کے وہ دماغ ہی گرم کرنے والی بات ہے نا. تو میں تو ایسے لوگوں کو مطلب وہ لفٹ بھی نہیں کراتا. جاؤ وہ آرام سے بلاک کر کے میں سائڈ پہ کر لیا. اچھا، میں نے ایک دو غیروں کے سنا دیں میسج ہمیں. میسیج وہی ابھی میں نے ویڈیو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آ گئی ہے، وہ دیکھ لیں. اس کے اندر تم تو مذاق کے لیے یہ چلو میں سنا دیتا ہوں دوبارہ اس کے. ہاں جی. آڈیو میسج سنا دیں مفتی صاحب، جو ایک دن آپ نے شاید کی براڈ میں سنائے تھے. چھوڑیں جی آڈیو بڑا کچھ ہے. بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جب کسی چیز کا جواب نہیں نہ ہوتا تو اپنا من ہلکا کرنے کے لیے، اپنا دل اور دماغ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ ہے گالی. بھائی جب مطلب من کے اندر وہ بڑا غم و غصہ بھرا ہوا ہے تو ایک بہترین طریقہ جواب علمی تو یار یہ مائک تو وہ پھر اب جواب تو ہے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ ایک بہترین طریقہ تیری بہن دی، تیری ماں دی، تینوں میں تینوں انج کر. یقین جانے ہم ان لوگوں کے سامنے ہو تو سچ مچ کی شاید یہ گولی مار دے ہمیں، تو ہم ان کے ہتھے نہیں چڑھتے اصل میں. تو یہ تو ایسے ہی بس یہ تو غم و غصہ کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے پھر. ہاں جی، غم و غصے کے اندر پھر ایسے ہی ہے. مفتی صاحب وہ یہ نہیں بات ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے ہو نا تو ان کے منہ سے الفاظ بھی نہ نکلے، گولی تو بڑی دور کی بات ہے. یہ ہمیں گالی صرف سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. اب میں سامنے ہو تو میں کہتا ہوں ان کی بولتیاں بند، ہم نے بڑی دفعہ بولتیاں بند دیکھی ہیں. ایک دفعہ نا مجھے کسی نے دعوت دی کہ مناظرہ کرنا ہے، قادیانیوں کی ایک بستی ہے حافظ آباد کے قریب. تو ہمارے ایک بھائی ہیں نصیر سندھو صاحب، وہ ایکس قادیانی ہیں، نو مسلم ہیں. تو وہ جس آبادی کے اندر رہتے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ شاہ جی ادھر آئے، ان کو ذرا تبلیغ کر. میں چلا گیا. اب کمرے کے اندر انہوں نے اپنے قادیانی مربی بلائے اور پورا پنڈ قادیانیوں کا اکٹھا ہوا ادھر. میں جا کے پٹاری کھول لی کتابوں کی. اب وہ اس کا ایک رنگ آئے تو ایک جائے، پسینے اس کو چھٹ رہے ہیں، اس کی حالت وہ منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں، اس کو بولنے ہی نہ آئے. اب مطلب یہ کہ میں چونکہ اللہ پاک کے حکم سے میں ڈیبیٹر ہوں، اور اس جیسے قادیانی تو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں دیکھے ہوئے تھے، تو ہمیں ایکسپیرینس ہے، پرانا ایکسپیرینس ہے. میں نے اب مربی کو چھوڑ کے نا میں عوام کی طرح بو کر کے، وہاں بابے بھی بیٹھے تھے، میں کہ بابا جی وہدے ہو پے پنجابی کے اندر، اور میں کہ وہدے ہو پے تواڈے مربی نو تو بولنا ہی نہیں ہوندا. تے اور بابا جی کہتے مربی صاحب دو نا جواب. مولوی صاحب کہتے دو نا جواب. مربی صاحب تو آئے جائے کچھ مربی نا وہ کہہ کے نا یہ کہہ کے پھنس گیا، کہنے کا مولوی جھوٹ بولدا جے پیا. بابا جی یا مولوی چاچا جی مولوی جھوٹ بولدا جے پیا. وہ میں تو پہلے اس چیز کی تاڑ میں تھا کہ یہ اس کے منہ سے نکلے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. میں کٹ لی کتاب، میں کہا ویکھو یہ کتاب. مربی دے ایک رگ آئے تو ایک رگ جائے. میں لے کے گیا تھا لیپ ٹاپ ساتھ، کیونکہ لیپ ٹاپ کے اندر ساری کتابیں ہیں. میں نے کہا یہ مرزے کی فلاں کتاب ہے، لے کے آؤ، تمہاری کتاب ہے. یہ نہ ہو میں ابھی پورے گاؤں کے سامنے میں یہاں مجھے زندہ جلا دو، میں لکھ کے دے دیتا ہوں میرا خون معاف. جاؤ. بولتی بند جناب، بولتی بند. بولنے جو کا چھوٹے ہی نہیں ہم نے.
शाह साहब एक और बड़ा ड्रामा हुआ है कादियानियों के साथ। मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा हाथ हो गया, एक हाथ लगा के देखते हैं बेचारे। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था ना, तो कादियानी मुरब्बी जो है ना अपने मानने वालों को कहते थे कि जी असी जाने हैं मौलवी सानू गालां कढ़दे कुटदे ने। अब आ गई बात सोशल मीडिया पे। अब जो था भी ना उनके हाथ में लुका छुपा सब खोल दिया सोशल मीडिया ने कादियानियत में। ये एक अलग खूबसूरती हो गई है बात में। अली भाई इनका एक मशहूर डायलॉग है, इन्होंने सिखाया हुआ है अपने बच्चों को कि बड़े तो बड़ा मौलवी भी साढ़े नाल गल नहीं कर सकता, साढ़े गल्लां दे जवाब नहीं है उन्हां कोल। ਕਾਮਨ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਵੀ ਮੁਰੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਫੜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਫਿਰਦੀਆਂ। अब जो कादियानी है वो कहते हैं अब तो सोशल मीडिया है, करो बात, दो जवाब मौलवियां दो, बैठे सामने सवाल रख रहे हो, दसो उन्होंने कि मिर्जे ने क्या इसमें अहमद चाह लिखा है, दसो इसका की जवाब है। इतने जलील हो रहे हैं शाह साहब, हम देख रहे हैं माशाल्लाह, आपकी वीडियोस भी देखते हैं, आपके हाथों से मुसलमान हो रहे लोग, और बहुत सारे मुसलमान हमारे माशाल्लाह ओवरसीज में भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं, वो कहते हैं ना ये इन तिलों में तेल नहीं, ये बाजू मारे अजमाए हुए हजरत जी, कोई नहीं सामने आने नहीं इन्होंने, इन्हों दी मावा मर जाएंगे सामने नहीं आनगे ना। दबो जो आप अगर सच्चे हो दो जो आप, डरते क्यों भागते क्यों हैं, दो जो आप दलील का जवाब शाह साहब मेरा तो ये मानना है बड़ा होता है मैं पाकिस्तान साढ़े जुल्म बड़ा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੁਰੱਬੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਜੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇ ਸੂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਚੰਡੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲਵੇਂ। शाह साहब एक और मिसाल भी है ना पंजाबी च, एक और मिसाल है ना पंजाबी च शाह साहब मेरे तो अगर एक तो आप सैयद साहब से करने की इजाजत दे दें। हेलो अली भाई प्लीज यार एक सवाल सैयद साहब से करने की इजाजत दें। सैयद साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करें या किसी हवाले को हम किताबों से पढ़ रहे हो, तो हमने देखा है कि हमारे एक साहब हैं जो कि खुद को बज़ाहिर तो मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनके हर काम में ज़ाहिर होता है कि कादियानियत नवाजी की बदबू आती है। तो जब भी वो तशरीफ लाते हैं, हमेशा जब कोई अहम मौजू चल रहा हो या कोई अहम बात हो रही हो, तो वो आके पूरी बात को खराब करके ये कहेंगे कि मुसलमान झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग अपने से बातें करते हो, जबकि पूरी की पूरी बात किताब से पढ़ी जा रही हो। अगर ज़िम्नी तौर पर कोई बात आ जाए तो वो पकड़ के इल्जामात लगाने शुरू कर देंगे। इसके बारे में शरीयत क्या कहती है कि जो बंदा कफ़ार का, दुश्मन इस्लाम का जो सपोर्टर बने और बाजार मुसलमानों के सामने घुसा हुआ हो और मुसलमानों की बात करे, आप उसके बारे में अपनी प्लीज राय दीजिए कुछ। कोई ग्लोबल भाई ऐसे बंदों की क्या बंदा करे, मतलब कोई ऐसे लोगों की कोई सरजमीन नहीं होती, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्या मतलब क्या ऐसे बंदों को तो मैं समझता हूँ कि मुंह भी ना लगाया जाए। मेरी अपनी जाती तो यही तबीयत है कि मैं ऐसों को मुंह भी नहीं लगाता। जा परा जा परा बढ़ जा एवं यब 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 थोड़ी यब यब ही नहीं मुकती, तो बस साइड पे करें, बस उनको मुंह ही ना लगाएं। बस कोई आलिम फाजिल हो, कोई बात करने की अहलियत रखता हो तो करो बात, इल्मी बात करो,
बात करने का तो नहीं हमने तुम्हें रोका। बज़ाहिर तो वो बंदा जो है अहले हदीस मकबा फिक्र का हामिल हो, बज़ाहिर बात करे कुरान और सुन्नत की, लेकिन जब लताड़ने का मौका मिले आके अपने ही मुसलमान भाइयों को लताड़े, अपनी आके उनके ऊपर बात करे और मिर्जा के ऊपर चादर डाल दे, पूरी की पूरी बात को पसे पुश्त डाल दे और बाकी किसी एक बात को लेके चल पड़े। उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? ऐसे लोग जो कफार के हमायती हों। एक मुफ्ती साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है, मुफ्ती भाई जख्मी लग रहे हैं ग्लोबल भाई, आप जख्मी हालत में लग रहे हैं मुझे। मैं जख्मी, देखिए मुफ्ती भाई मैं जख्मी नहीं हूँ, मुझे हमारे लोगों के ऊपर तअज्जुब आता है, मुझे इनकी हालत के ऊपर। ये हमारी सफों में मुफ्ती साहब, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20-20 साल से बतौर मुसलमान हमारे अंदर घुसे हुए हैं, यकीन करें उनका पता नहीं चलता। अल्लाह। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप इसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बज़ाहिर जो है, मतलब मुफ्ती साहब मैंने देखे हैं ऐसे लोग जी। आप कसम खुदा मुफ्ती साहब, मैं वेस्टर्न सोसाइटी में रहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें जो बाजार इस्लाम का लबादा ओढ़ के आते हैं? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक मजारा देखा अपनी इसी ब्रॉड पे, तो ऐसी बात करेंगे जिससे असल मौजू से तवज्जो हट जाएगी और वो आपकी किसी ज़िम्नी बात को लेके चल पड़ेंगे, हालांकि वो ज़िम्नी बात भी ठीक ही निकल आए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब मैं अब क्या आपको बताऊं, बता दूंगा 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी सारी बातें, इशारा मेरा किस तरफ है, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। बट दिस इज माय क्वेश्चन टू यू रिस्पेक्टफुली। भाई हम डायरेक्ट पहुंच गए ग्लोबल भाई, ये कौन सी बात की आपने इशारे वाली? डायरेक्ट पहुंचे हैं हम लोग तो। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब मैं ना पंजाबी ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ। तो एक मरासी अपनी मां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ कि अगर यार अली भाई एक सवाल अली भाई एक सवाल और कर लेंगे यार अली भाई प्लीज यार, मुफ्ती साहब बैठे हैं, चलो मैं क्या फायदा शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती साहब एक सवाल, अगर मिर्जा कहे कि मेरा ताल्लुक यहूदी उल नस्ल से है, यहूदी उल नस्ल, तो मैं तो उसके वालिदैन को यहूदी नस्ल से तलाश करूंगा ना? बिल्कुल। क्या मुतालबा एक साहब से ये है कि मैं समझता हूँ कि मिर्जे ने जो दावा किया है कि वो यहूदी उल नस्ल है, फारसी उल नस्ल है और चीनी उल नस्ल है और मुगल बल्लास है, तो मैं अगर डिमांड करूँ कि मुझे उसका यहूदी उल नस्ल होना साबित करो, मैं कह रहा हूँ चूड़ा। तो मिर्जा उन्होंने ये लिखा है कि हम चूड़ों से मिर्जाई बने हैं। तो वो भी हवाला जरा अगर मेहरबानी करे दे दे तो मैं कागज पेंसिल लेके नोट कर लेता हूँ, क्योंकि दीदे अब तो मैंने पढ़ी है। ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਧਾਰ वाला चक्कर नहीं मुफ्ती साहब मैं कागज पेंसिल निकाल रहा हूँ, सिर्फ एक लम्हा की भी मसला हल करनी चाहिए। किताब का नाम है खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवा, जिल्द 2 सफा 263। तो ये ले स्कैन भी हम स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, तो क्या याद करोगे जी? ये लें जी, स्क्रीन शॉट ले लें। अच्छा जी, हम मिर्जा साहब को मानकर चूड़ों से मिर्जा हो गए, लोग हमें मरजई कहते हैं, ये कितना बड़ा फायदा है जो हमें हासिल हुआ।
वो कहते हैं हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हम चूड़ों से मरज़ई बन गए हैं, ये तो हमें फायदे की बात मिली है। किताब का मुसन्नफ कौन है? यानी शाह जी चूड़ा मिलने के पहले वालिदैन मुसन्नफ चूड़ा है। कोई चूड़ हाँ जी, मरज़ई चूड़े हैं ये खुद, ये जनाब इनके खलीफे ने ये लिखी है। हाँ, वो कहते हैं हम चूड़े थे पहले। लो जी, तो इसका मतलब शाह साहब आपको कभी ये दुख महसूस नहीं हुआ कि मैं एनी जी रिसर्च जी चूड़ियां कर दी? नहीं नहीं, दुख की खुशी हुई है। ग्लोबल भाई आपका सवाल है कि मेरी ना मिसाल बहुत देर से लटकी हुई बेचारी रास्ते में। वो असल में आपका सवाल बड़ा शदीद से जंप मारता है बीच में, तो मैं असल वो मिसाल दे के ना कादियानी को जवाब देना चाहता हूँ। एक नीचे उसने बड़ी हमें बुरा भला कहा था। अच्छा यार, ये एक बात मैं करके तो एक मिनट अली खान, एक मिनट भाई यार, ये जो मैं जब आया था तो एक लड़की खातून हमारी बहन बाजी बेटी बैठी थी हजल, ये कल भी आई थी और इस तरीके से ही बिल्कुल फजूल किस्म के सवालात कर रही थी। अच्छा, ये कल भी बात मैंने करनी थी, वो फिर बीच में एक मरज़ई आ गया था राफजी खलीफा वक़्त नाम का, तो फिर उससे बात शुरू हो गई थी, तो वो फिर बात मुझे भूल ही गई। अच्छा, ये लड़की का जो नाम है ना, ये नाम मुल्हिदीन वाला नाम है भाई, हजल नाम रखा हुआ है इस खातून ने, लड़की ने। और हजल का मतलब होता है फुहाशी, बद कलामी, गंदगी ना वैसे में खवातीन या मतलब जिसको पोर्नोग्राफी कहते हैं, पोर्न कहते हैं, या नहीं मुफ्ती साहब नाम तो पता है, टिकटॉक पे जो है कच्चे कौन सा का नाम है, हजल नहीं है, ये हेजल है मुफ्ती साहब। बहुत सारे टिकटॉकर के अपने ही नाम है, आपको पता ही है। नहीं वो नहीं, सोची समझी स्कीमें भी तो होती हैं ना। ये कह के हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते भाई। बड़ी इसके वो देखे ना, मैंने कहा कि ये जब उसके पर्दे के ऊपर मैंने एक इतराज किया कि ये पर्दा साबित करो कहाँ पे है, तो कहने लगी कि वो तो तस्वीर ही मैंने किसी और लड़की की लगाई है। तो असल में ये लोग कुछ एथियस्ट दैर्य हैं जो कि इस्लाम के अंदर इंतशार फैलाने के लिए इस्लामी लिबादे के अंदर आते हैं। लड़कियां बन के, इस्लामी लड़कियां निकाब पहन के आ रही हैं और मुस्लिम आईडीज, कोई दाढ़ी वाली तस्वीर कोई इस तरह की रख के, कोई मोहम्मद अहमद नाम रख के, तो ये है एथियस्ट पीछे से। यानी तो ये लोग, इन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है कि ये लोग अपने आप को मुस्लिम जाहिर करके इस्लाम के अंदर इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। ये असल में बात मुफ्ती साहब वो ना हेजल जो है ना एक रंग का नाम है, जैसे रंग होता है ना, हेजल एक रंग का नाम है, और वो एक रंग का नाम है। काफी हद तक वो कादियानियों के खिलाफ ही बात करती हैं। नहीं, रंग का नाम नहीं है, हेजल उनका हेजल है, हजल नहीं है, हेजल है। बस ऐसे ही है। लेकिन ये अरबी का लफ्ज है। तो ये देखें, वादे तौर पे ये कह रहे हैं लागेर या इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है बेहुदा कलाम या बातें, बेहुदा मजाक, गाली गलोच, फोहश बातें, तमस्कुर, हंसी मजाक, वो हजल है। यहीं से ही हुजूर भी निकला है जी। ये हेजल है, वो हजल आप बता रहे हैं ना, ये हेजल है। अच्छा, हेजल है, ठीक, चले जो भी। ये इंग्लिश का लफ्ज है, ये एक कलर को कहते हैं, एक रंग है। अच्छा, नहीं, वो मुख्तलिफ ब्रॉड पे उनको सुना है, वो कादियानियों से काफी वो डिबेट बहस कर रही है। उस बेचारी को डिबेट क्या करनी है, ये बेचारी और बेचारे, मतलब ये बेचारियां और बेचारे जो हैं, ये खुद इनका अपना सतही तक इल्म होता है और इनको खुद कुछ नहीं पता होता, तो इन्होंने क्या डिबेट करनी, बताए ना। मतलब सिर्फ गुफ्तगू करना और सिर ढा के रखन दा नाम ते ना तुसी डिबेट दे दियो। डिबेट यार, डिबेट नूं इतना ही हल्का ना समझे कि भाई जो मर्जी जैसी भी गुफ्तगू करता है तो वो लिहाजा डिबेट कर रहा है, ऐसे तो नहीं ना।
नहीं, वो हमारे पास आती है, वो काफी इंफॉर्मेशन गैदर करती है। हाँ बाकी ठीक अल्लाह है ताला दिलों के रास्तों पर उमर लगाता है। फराज भाई फिर वो कादियानी नीचे से हट नहीं रहा यार, मिसाल दे दिए कि रहन दिए? दे दियो मेरे को एक मिसाल। ग्लोबल भाई जंप मारना तो बताएं, मैं फिर रुक जाऊं। अच्छा, मिसाल यही है कि शायद वो एक ਮਰਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ। ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ का वो हिसाब है कि बेटा तू चौधरी नहीं बनता जो कुछ भी है। ਪਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਚੂੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਸਵਾਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੂੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। यार एक कोई मरजई साहब नीचे कह रहे हैं कि मुझे कॉल पे लो, मैंने गालियां निकालनी है, तो ले लो यार उनको। चलो गालियां ही मिर्जा साहब वाली गालियां सुनाएंगे। बड़ियां गालां काट गया। लो जी सुने जी पाकिस्तानी साहब आ गए जी। शाह जी ये मरजई नहीं है, ये हमारे भट्ट साहब है। ये वैसे मजाक में कह रहे नहीं, वो नीचे कह तो रहे थे। नहीं। अच्छा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सब लोगों को सलाम मेरी तरफ। तो मैं इसलिए प्यारे भाइयों बोल रहा था कि ऊपर मुझे ले के वो ग्लोबल भाई जिस आदमी की बात करते हैं वो सारी दुनिया को पता है कि वो नजदी है, तो इसमें क्या शक वाली बात है? वो ग्रुपिया है, इसमें कौन सा परेशानी वाली बात है? बस अल्लाह माफ़ करे जी। कुछ ना हमारे अपने ऐसे हैं कि यकीन मानने के बड़े मामलात होते हैं। वल्ला मुझे नहीं पता कि ये किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि मैं सीधा बता देता, वो जाहिद अस्कानी की बात कर रहे हैं, वो ग्रुपिया है। नहीं, वो मुझे तो किसी का कोई कुछ भी डर नहीं है। नहीं, वो तो अपने आप को कहते तो हैं कि मैं वाबी हूँ, लेकिन वो मेरा तो बड़े पुराना एक्सपीरियंस है ना। वो वाबी भी नहीं है, वो कुछ और है। असल में आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है, ये जानते हैं। इनका असल नाम आस्कानी भी नहीं है, असल नाम कुछ और है, वो कोई भी नहीं जानता। तो एक मुल्हिदीन का एक ग्रुप था और नाम था उसका, अल्लाह आपका भला करे, प्योर डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर था। उसके अंदर वो सारे मुल्हिदीन थे, इस्लाम दुश्मन लोग। मुझे भी किसी ने ऐड कर दिया और ये भी बीच में थे। मैं एक मुल्हिद के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ और दलाइल दे रहा हूँ, तो बीच में ये टपके एकदम। पहली दफ़ा जो मेरा तारुफ हुआ था वहाँ पे हुआ था, तो ये टपके और इन्होंने जनाब उस मुल्हिद का दिफा करते हुए मुझे मलामत करनी शुरू कर दी। फिर मैंने अल्लाह पाक के हुक्म से फिर इनकी जो मेरा अपना एक पुराना तरीका है तो बजा डाली फिर। हाँ जी, तो ये पुरानी बात है। तो बहरहाल ये कर्ज से बाद ये टिकटॉक के ऊपर दोबारा नज़र आए हैं, तो हम भी जाते रहे हैं इनके साथ। चंद दफ़ा दोबारा गए हैं, तो दोबारा तो नहीं कोई ऐसी मेरे साथ तो नहीं कोई ऐसी इनकी कोई टसल हुई। तो हम तो उसूलों के ऊपर रह के बात करने वाले लोग हैं भाई। हाँ, उसूलों के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो बात है वो बात करनी है हमने, वो नहीं रुक सकते हम। हाँ, तो ये बात है। शाह जी, वो बात ये है ना कि जब तक अपना ना कोई मारे तो बंदा मरता नहीं है। हाँ, वो एक बंदा सी ना, ओदी यारी लग गई इजराइल नाल, ते इजराइल पूछने लगा कि तो जो बंदे की जान कटना है तो की तरीकेकार होंदा है। तो इजराइल ने कहा कि मैं ना सब तो पहले पैरां नूं स्टार्ट करना जान कटना। उन्हें कहा चलो ठीक है, उन्हें गल ज़हन च रख ली। हुण ज़ाहिर गल है, हर बंदा ने मरना तो है वे, हुण उस बंदे का भी टाइम आ गया। मंजी ते लम्मे पिया ते इजराइल ओदी जान कट्टन आ गया, ते ओह हुण इजराइल पैरां नूं जान कट्टन लगा ते उन्हें फटाफट ना सराणे वाल पैर कर लिया।
ਉਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾੜਾ ਬੋਂਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗਾਇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि अच्छा आप ना बैठे उमर भाई और दीगर सारे साहिबान, मैंने जाना है जी, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है जी, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया है और आपने खुल के ख्यालात का इजहार किया। ये नहीं बात की कि ढके छुपे लफ्जों में आप बात करें। मैं आपका मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। ये कोई पहली दफा थोड़ी है, मैं हूँ ही ऐसा, मैं पुराना ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ। मुफ्ती साहब आपको तो पता नहीं है, आपके तो चाहने वाले हम तो 15-15 साल से आपको यूट्यूब पे देखते हैं। ग्लोबल भाई मैं ऐसा हूँ कि आज मेरी आपके साथ दोस्ती है ना, कल ही आपकी ही ब्राड के ऊपर आपसे जब कोई उसूलों के ऊपर इख्तलाफ हो गया तो मैंने आपको भी झूठा कर देना है। पीर साहब वो देखिए शाह साहब, बात ये है कि गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए, बस इतनी बात है। वो कोई भी हो उसकी जद में अपना भी आ जाए, आप भी आ जाए उसकी जद में। आज जो दूसरे बंदे के लिए मौकफ है, कल को एक मिसाल है आपके निकल आए तो आपके बारे में भी राय बदल जाएगी ना, ऐसे होता है। उसूलों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई, वो हम भी गलती करेंगे, हम भी उसमें जद में आएंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, जज़ाकल्लाह खैर सैयद साहब, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अली यार मैं देखो माजरत चाहना 2 दफा यार अली भाई आपकी बात मुझे रोकनी पड़ी अली भाई, मैं शुक्रगुजार। कोई बात नहीं ग्लोबल साहब शुक्रगुजार भी और माजरत खाब ਲਾਨੀਆਂ ਨਜਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਉਂਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇhtਰਾਮ ਕਰੋ। भट्ट साहब एक अंग्रेजी का लफ्ज है, एक अंग्रेजी का लफ्ज है LPT ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ऐसी कोई गल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो एक मशवरा है, मैं आपकी पहली बात पे समझ गया। मेरा एक मशवरा है, ये महाज ना खोलें, ब्रॉड बड़ी बेहतरीन चल रही है, आप लोग उस पर लगे रहें, ये ना खोलें क्योंकि ये सबको पता लग चुका है उनके सारे हालात का। ये उसकी ब्रॉड पे जाके बात होगी जी अब अगली। हाँ वो उस पे उधर ही ले जाएंगे, अपनी ब्रॉड पे नहीं। नहीं अपनी ब्रॉड पे नहीं होगी, उसकी पे ही होगी बात सही है। ऐसा जितना मर्जी बिस्मिल्लाह करो जी, बिस्मिल्लाह करो जनाब, तुसी शिकवा करो साडे भरा जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ? ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇੋਂ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ।